हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन माय चैनल साइंस वाला। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास सिक्स्थ साइंस का चैप्टर लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन। सो इन दिस चैप्टर वी आर नोइंग अबाउट टर्म लाइट, शेडोज एंड reflection. What is light, what are the shadows, and what is reflection? So let's begin. First is light. Light is a form of energy which is responsible for the sense of sight. It enables to see things around us. देखिए बच्चों, क्या है लाइट? वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें करती है, हेल्प करती है, रिस्पॉन्सिबल टू सेंस ऑफ लाइट, जिससे हम लाइट को सेंस कर सकते हैं। एंड इट इनेबल्स टू सी द थिंग्स अराउंड अस। वो हमें इनेबल करती है हमारे चारों तरफ चीज़ों को देखने के लिए। इट इनेबल्स अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस। Second, light enables us to see every object around like trees, vehicles, houses, peoples, etc. जो लाइट हमें इनेबल करती अलो करती है हमारे चारों तरफ ऑब्जेक्ट्स को सीन करने के लिए। एट द नाइट, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, इट बिकम्स डार्क विच रिड्यूसेस आवर विजिबिलिटी। जब हम रात को देखते हैं तो लाइट नहीं होती, और लाइट की प्रेजेंस में अनप्रेजेंस में हमारे पास क्या होता है, डार्क होता है, और विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है और कम दिखाई देता है। ऑब्जेक्ट्स दैट इमिट लाइट आर कॉल्ड luminous object. This is important definition. What are the luminous object? The object that emit light are called luminous object, like sun, bulb, tube light, etc. In other sense, we also say luminous object are those object which have their own light. Luminous object are those object which have their own light are called luminous object. Next is any non-light emitting object are called visible, is visible when the light from the luminous source falls on the object and then reaches in our eyes. कोई भी नॉन लाइट इमिटिंग ऑब्जेक्ट है, जब उसके ऊपर लाइट स्ट्राइक करेगी, सपोज दिस इज लाइट इमिटिंग, suppose this part of the torch is non light emitting, then the fall the light, and when the comes in our eyes, then we object is visible to us. This is a reflection part. Okay, any non light emitting object is visible when the light from a luminous source falls on the object and the reaches in our eyes. These objects are called non luminous objects. In other sense, we say the objects which have their no own light, they are looking like by the others light reflected, like trees, animals, shoe, moon, all are the non-luminous object. They are reflect the light of other bodies for the visibility. Next is transparent, opaque, and translucent objects. They are classified. The objects are generally classified into three types on the basis of the light passing through them. First is opaque. These objects do not allow light to pass through them, are called opaque objects. We cannot see through these objects. For example, wall, door, trees, etc. Opaque objects क्या होते हैं? The objects this do not allow the light pass through them are called opaque objects. For example, we cannot see through these objects. Example, wall, door, trees, etc. ठीक है, जिनमें हम देख नहीं सकते हैं. Translucent objects. The objects that allow the light to pass through them partially are called translucent objects. Translucent object. These objects allow the light pass through them partially are called translucent. जिनमें से लाइट पूरी तरह से नहीं जाती, partially जाती है. We cannot see through the objects a little but not clearly. इसमें से कुछ लाइट तो पास हो जाती है, कुछ नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, पॉलीथीन बैग, पेपर, बटर, थिन प्लास्टिक शीट, ये सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं? हमारे ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, जिसमें कुछ अमाउंट तो लाइट का पास होता है और कुछ अमाउंट पास नहीं होता. पार्शियल अमाउंट इज पास. नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. The objects that allow light to pass through them completely are called transparent objects. We can see through these objects clearly. इनमें हम आर पार आसानी से देख सकते हैं. सपोज ग्लास, एयर, वाटर are the transparent object. Light is completely passed through these objects, so we can see the objects out of this. Next is shadows. A shadows is a space where light from a light source is blocked by an opaque objects. शेडो वो स्पेस है जहाँ पे लाइट ऑब्जेक्ट से ब्लॉक हो जाती है. सपोज हमारे पास कोई वुडन ब्लॉक है, उसके ऊपर लाइट आएगी तो लाइट उसके अंदर क्रॉस नहीं होगी बिकॉज इट इज़ ओपिक, एंड इट्स
पार्ट इज विजिबल ऑन द स्क्रीन और वॉल, उसका जो पार्ट है वो कहाँ दिखाई देगा हमें, स्क्रीन पे या वॉल पे दिखाई देगा, दिस इज कॉल्ड शेडो। जो पाथ ब्लॉक हुआ उसी की हमें शेडो दिखाई देगी। अ शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन द पार्ट ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इफ द ऑल लाइट इज ब्लॉक्ड बाय द ऑब्जेक्ट देन देयर विल बी नॉट बी एनी शेडो। जो अगर सारा पार्ट ब्लॉक हो जाए तो कोई शेडो नहीं बनेगी। ठीक है, सपोज ऑब्जेक्ट हमारा बहुत बड़ा है या वॉल है, रूम के अंदर हम टॉर्च मार रहे हैं तो उसकी शेडो हमें पीछे दिखाई नहीं देगी, बिकॉज कंप्लीट लाइट को उसने क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, उसको रिफ्लेक्ट कर रही है बट उसमें से पास नहीं हो रही है। शेडो कब बनेगी, शेडो बनने की कंडीशन क्या है, जब लाइट सोर्स से लाइट ऊपर भी जा रही है और पीछे की ओर पास हो रही हो कुछ अमाउंट में, और ओपीक ऑब्जेक्ट उसको ब्लॉक कर रहा हो, तो ब्लॉक्ड पार्ट की शेडो पीछे की ओर बनती है। शेप ऑफ शेडो इज ऑलवेज सिमिलर टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट बट साइज वेरीज। शेप अगर रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है तो रेक्टेंगुलर बनेगी, स्फेरिकल है तो स्फेरिकल बनेगी, सिलिंड्रिकल है तो उसका फ्रंट से सिलिंड्रिकल बनेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको लॉजिकली याद रखनी है। अगर सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है और यहाँ से हम टॉर्च से लाइट डाल रहे हैं तो इसकी शेडो कैसी बनेगी, सर्कुलर बनेगी। अगर ये इस बेसिस पे रख दिया जाए, एक सिलेंडर को हम रख देते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर उसमें डालेंगे तो हमें रेक्टेंगुलर शेडो दिखाई देगी। ठीक है, तो शेप उसकी वेरी कर सकती है। द शेडोज ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑब्जेक्ट मे हैव द सिमिलर शेप बट अमाउंट ऑफ लाइट मे बी ब्लॉकिंग इज सेम। Shadows cannot occur in dark rooms due to absence of light, and the full lit rooms no objects due to absence of opaque objects. ठीक है, फुल लिट रूम का मतलब क्या, पूरी तरह से उस रूम के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है, तो उसमें कोई शेडो नहीं बनेगी, क्योंकि शेडो बनने के लिए ऑब्स्टेकल चाहिए जो उस लाइट के पाथ को ब्लॉक करे। A shadow is always obtained on the screen, walls or ground etc. A shadow is always black or gray irrespective of their color object. Next is, what is pinhole camera? A pinhole camera is a simple camera without lens in the shape of box. One of the side has a small hole and it produces a inverted image of the outside world and other side. The box should be painted black from outside and inside for the better clarity. The box should be painted black from outside and inside. जो बॉक्स है उसे आउटसाइड और इनसाइड से ब्लैक कर देंगे फॉर बेटर क्लियरिटी। द ऑब्जेक्ट्स हुज इमेज इज टू बी सीन शुड बी इन ब्राइट लाइट। द ऑब्जेक्ट्स हुज इमेज इज टू बी सीन शुड बी इन ब्राइट लाइट। ठीक है, जिसकी ऑब्जेक्ट की इमेज में देखेंगे, द ऑब्जेक्ट हुज इमेज इज टू बी सीन शुड बी इन ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट में होना चाहिए। स्मॉलर द होल शार्पर द इमेज, जितना छोटा होल होगा उतनी शार्पर इमेज आएगी। The temporary black and white images are formed on the screen of the tracing paper is used, and permanent colored and the black and white images can be obtained using photographic films instead of tracing paper. In the below diagram, the boxes are placed inside the others. देखिए, ये बेटा हमारा होता है पिन होल कैमरा, इसको हम बना कह सकते हैं शू बॉक्स से हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ अपने ट्रांसल्यूसेंट शीट यानी बटर पेपर हमने लिया और यहाँ से अपन एक छोटा सा पिन होल, पिन जैसा होल उसमें कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे हमने लगा दी स्क्रीन। ठीक है, इस स्क्रीन पे हमें क्या दिखाई देगी, इमेज दिखाई देगी। देखिए होता क्या है, इसमें इन्वर्शन का काम करता है। ये जो पिन होल कैमरा है इसमें हमारा इंटरफेरेंस इसमें डाइफ्रैक्शन फिनोमेना होता है, और डाइफ्रैक्शन फिनोमेना से इमेज हमें कहाँ दिखाई देती है, उसके अंदर स्क्रीन पे दिखाई देती है। द वेरियस इमेजेस ऑफ द सन स्मार्ट स्पॉट्स ऑन द ग्राउंड स्पेस बिटवीन द लीव्स ऑफ द ट्रीज एंड द पिन होल्स। देखिए इसका रियल एग्जांपल क्या है, जैसे ट्रीज में से हम देख रहे हैं जो सनलाइट है वो छन कर आ रही है, तो हमें देखते हैं स्मॉल स्पॉट्स दिखाई देते हैं, सन के छोटे छोटे स्मॉल स्पॉट्स दिखाई देते हैं, वो भी क्या होता है, पिन होल कैमरा पे फंक्शन पे वर्किंग करता है। नेक्स्ट इज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन्स, ब्लॉकिंग ऑफ सच स्ट्रेट line moving light rays by opaque object result in shadows। जो हमारे पास स्ट्रेट मूविंग लाइट रेज है, अगर कोई ऑब्जेक्ट उसे पाथ को ब्लॉक करता है तो शेडो क्रिएट होती है। शेडोज कैन नॉट बी फॉर्म्ड इफ द लाइट रेज डू नॉट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस। अगर लाइट हमारी स्ट्रेट लाइन मूव नहीं करती तो शेडो कभी भी ना बनती। द एक्टिविटी फॉर इट, देखिए यहाँ पे हमारी लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करें, हमने एक पाइप लिया, पाइप से अगर हम फ्लेम ऑफ कैंडल को देखते हैं तो हमें विजिबल होगी। अगर हमने ब्लॉक्ड पाइप ले लिया, ठीक है, बैंडेड और ब्लॉक्ड पाइप ले लिया तो हमें विजिबिलिटी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है मिरर एंड रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन, द फिनोमिना ऑफ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट विद इन अ सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मतलब क्या है, जैसे हमारे पास एक मिरर लगा हुआ है और लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट कर रही है और उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये एयर में ही आई थी और एयर में ही वापस चली गई। ड्यू टू द रिफ्लेक्शन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सीन इन द मिरर, इसी वजह से हम अपनी इमेज को मिरर में देख सकते हैं। मिरर क्या है, मिरर इज एन ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट द लाइट एंड फॉर्म द इमेजेस। मिरर वो ऑब्जेक्ट है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और इमेजेस को बनाता है। मिरर हैव वन साइड इज पॉलिश्ड एंड अदर साइड इज रिफ्लेक्टेड और शाइनी। मिरर की एक साइड पॉलिश होती है, दूसरी साइड क्या होती है, रिफ्लेक्टेड और शाइनी होती है। शाइनी एंड द पॉलिश सरफेस यूजली एक्ट एज अ मिरर। शाइनी और जो पॉलिश सरफेस है वो यूजली क्या काम करते हैं, मिरर्स का काम करते हैं। मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। मिरर क्या करता है, जो लाइट उसके ऊपर आती है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो मिरर के बारे में देखिए, हमें याद जो करना है, ये हमारी पास होती है पॉलिश्ड और सिल्वर साइड, जो इस तरह से डिनोट की जाती है पेपर पर। ये हमारी होती है रिफ्लेक्टिंग साइड, जहाँ से कोई लाइट रे आएगी और इंसिडेंट करके वापस रिट्रेस करेगी अपने पाथ को, और इसी में हमारी क्या बनती है, इमेज बनती है। I hope you understand the all terms of this chapter. Please like, share and subscribe our channel for upcoming notification of the other videos. Thank you and have a nice day.